Good morning, students. Myself Rekha Sharma, and this is online class of MSc Previous Semester First, Paper 2, Organic Chemistry. The topic of today's lecture is resonance or delocalized chemical bonding. A concept that makes valence bond theory useful for the structural description of complex molecules is resonance theory. It is an extension of valence bond theory which recognizes that more than one Lewis structure can be written for many molecules. एक कॉन्सेप्ट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जटिल अणुओं की स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन के लिए यूजफुल बनाता है वो है रेजोनेंस थ्योरी. रेजोनेंस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन या विस्तारित रूप है जिसके अनुसार कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं. Resonance is a hypothetical state of a chemical species in which its electronic structure be hypothetically represented by two or more resonating structures, each differing in the distribution of electrons. The properties of the species will not be those to be expected of any of the resonating structures, but they will be those to be expected of a combination or hybridization called a resonance hybrid of them. अनुनाद एक रासायनिक स्पीसीज या मॉलिक्यूल की परिकल्पित या हाइपोथेटिकल अवस्था है जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनीय संरचना को काल्पनिक रूप से ऐसी दो या अधिक रेजोनेटिंग फॉर्म्स के द्वारा दर्शाया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन के वितरण में अंतर होता है. इस केमिकल स्पीसीज या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज किसी एक अनुनादी संरचना के समान न होकर ऐसी सभी अनुनादी संरचनाओं के मध्य की होती है जो अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है. द रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल स्पीसीज. Thus the chemical species has a single structure called resonance hybrid of its own which cannot be written down by the conventional Lewis method. So we take the help of other possible though non-existent structures or canonical structures which could be represented by Lewis method. Generally the resonance hybrid is projected on the paper by writing down all the resonating structures and placing a double-headed arrow between each paper. Resonance hybrid उस केमिकल स्पीसीज या मॉलिक्यूल की वास्तविक संरचना को दर्शाता है और इसे कन्वेंशनल लुईस मेथड के द्वारा नहीं लिखा जा सकता. सामान्यतः रेजोनेंस हाइब्रिड को दर्शाने के लिए उस अणु की सभी अनुनादी संरचनाओं को एक पेपर पर लिखकर उनके बीच में एक डबल हेडेड एरो लगाया जाता है. इट्स यूजफुलनेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइज इन इट्स बीइंग अ कन्वीनियंट वे ऑफ डिपिक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन. Resonance theory is particularly useful in describing conjugated species. Organic chemistry में resonance theory या अनुनाद सिद्धांत की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन को दर्शाया जा सकता है और कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के स्थायित्व को एक्सप्लेन किया जा सकता है. The elements of resonance theory that are necessary for qualitative applications are as follows. All the canonical structures must be written according to the Lewis method, showing bonds, lone pair of electrons and formal charges where required. किसी अणु की अनुनादी संरचनाएं लिखते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है. नंबर 1, सभी कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लुईस मेथड के अनुसार लिखा जाता है जिसमें बॉन्ड्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्मल चार्जेस को आवश्यकता अनुसार दर्शाया जाता है. The positions of the atomic nuclei of the chemical species must remain unchanged in all the resonating structures. Thus 1 and 2 are not canonical structures. सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट
एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन समान रहनी चाहिए। अतः एल्कीन की 1 और 2 जो संरचनाएं हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली pi bonds can be converted to a lone pair of electrons and vice versa. Thus, the resonance hybrid of alkene may be written as. Resonating structures को लिखने के लिए केवल pi bonds को lone pair of electrons या lone pair of electrons को pi bonds के अंदर convert किया जा सकता है। अतः एल्कीन के रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इस प्रकार शो कर सकते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज हो सकते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स मस्ट बी द सेम। द स्ट्रक्चर 6 कैनॉट बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए। अतः स्ट्रक्चर 6 को एल्कीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हो गई। द सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। दस फॉर एल्कीन्स structures 4 and 5 have such a high energy in comparison to structure 3 that they do not at all contribute to the hybrid. सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए। अतः एल्कीन के लिए स्ट्रक्चर 4 और 5 जिनकी एनर्जी स्ट्रक्चर 3 के कंपैरिजन में बहुत अधिक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। All atoms involved in the resonance must lie in the same plane or nearly in the same plane. Any change in its structure which prevents planarity will diminish resonance simply because maximum overlap of p orbitals cannot be possible them to form pi bond. Contribution of resonating structures in resonance hybrid. The most stable resonating structure contributes most and the least stable structure contributes least in the resonance hybrid. Resonance के अंदर इन्वॉल्व सभी एटम्स एक ही प्लेन के अंदर उपस्थित होने चाहिए और अणु की संरचना में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो कि उसकी प्लेनैरिटी को नष्ट करे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को भी रोकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम ओवरलैप नहीं हो पाता। एक रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे अधिक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। रूल्स फॉर रेजोनेंस। Stability of resonating or contributing structures can be known by the following empirical rules. Resonating structures with more covalent bonds are normally more stable than those with fewer covalent bonds. Thus, the structure 7 of 1,3-butadiene has major contribution in its resonance hybrid, and the structures 8 and 9 have minor contributions. वे अनुनादी संरचनाएं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या अधिक होती है उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अधिक स्थायी होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन के रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर 7 का कंट्रीब्यूशन अधिक होता है क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स 8 और 9 जिनमें केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। If the different resonating structures have the same number of covalent bonds, then uncharged structure have major contribution in the resonance hybrid. The structure 10 has much greater contribution than structure 11 of vinylamine in its resonance hybrid. यदि दो डिफरेंट
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या समान हो तो अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में अधिक होगा। फॉर एग्जांपल विनाइल अमीन के रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर 11 की अपेक्षा स्ट्रक्चर 10 जो कि अनचार्ज्ड है का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। Structures with isolated unlike charges have less contribution than those in which they are close to each other. The structure 13 of the phenol has more contribution than structure 14 in its resonance hybrid. ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें डिफरेंट चार्जेस पास पास स्थित हों रेजोनेंस हाइब्रिड में अधिक योगदान देते हैं। फॉर एग्जांपल फिनॉल के रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर 14 की तुलना में स्ट्रक्चर 13 का योगदान अधिकतम होगा। Structures with negative formal charge on the most electronegative atom and positive charge on the least electronegative atom have significant contribution. Structures with negative formal charge on the electropositive atom and positive charge on the electronegative atom have least contribution in the resonance hybrid. ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें नेगेटिव फॉर्मल चार्ज सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हो रेजोनेंस हाइब्रिड में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके विपरीत यदि नेगेटिव फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हो तो ऐसे रेजोनेटिंग फॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड के रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर 16 का कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 17 की तुलना में अधिक होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम पर। इक्विवेलेंट resonating structures are more important than non-equivalent resonating structures because in the former case the equivalent structures have equal energy but in the later case non-equivalent structures do not have identical amount of energy. Thus resonance in the carboxylate ion is more important than that in the carboxylic acid. Equivalent resonating structures non-equivalent resonating structures की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं जबकि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलिक एनायन के अंदर रेजोनेंस अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस फॉर्म 19 के अंदर क्योंकि चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है इस कारण स्ट्रक्चर 18 और 19 दो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं जबकि कार्बन आयन 20 और इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म 21 दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं और इस कारण ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। Isovalent resonating structures are those which have the same number of covalent bonds, and these are more significant than heterovalent resonating structures which have different number of covalent bonds. Structures 22 and 23 are isovalent resonating structures of benzene. These resonating structures are very important. Structures 22 or 23 and 24 or 25 are non-isovalent resonating structures. ऐसी रेजोनेंस फॉर्म्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या सेम होती है आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं और जिन फॉर्म्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या डिफरेंट होती है हेट्रोवेलेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स कहलाती हैं। और हेट्रोवेलेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स की तुलना में आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स अधिक सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर 22 और 23 आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जबकि 22 या 23 तथा 24 या 25 स्ट्रक्चर्स आपस में आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। स्ट्रक्चर्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम
that is possessing less than 8 electrons in its outermost shell, have high energy or low stability, and hence they contribute less than those structures in which octet rule is not violated. Thus, structure 26 contributes more than structure 27 in the resonance hybrid of diazomethane. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स प्रेजेंट हों, यानी जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हों, हाई एनर्जी वाले होते हैं या इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। अतः ये रेजोनेंस हाइब्रिड में उन रेजोनेटिंग फॉर्म्स की तुलना में कम कंट्रीब्यूट करते हैं जिनमें ऑक्टेट रूल का पालन होता है। फॉर एग्जांपल, डाइएजोमीथेन में स्ट्रक्चर 26 का कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 27 की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम देन दोज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। Greater number of significant structures in a resonance hybrid means greater importance of the resonance in comparison to another hybrid possessing fewer numbers of resonating structures. Thus, greater number of significant resonating structures means greater stability of the hybrid structure. किसी भी मॉलिक्यूल के लिए संभावित सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या जितनी अधिक होगी, वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। In conjugated system, electrons are distributed over whole of the molecule, embracing all the carbon atoms and do not remain localized. This phenomena is called delocalization of electrons. In an isolated system, delocalization also occurs between two adjacent atoms only, but such a wide range of delocalization of electrons involving large number of atoms cannot take place as in a conjugated system. So we can conclude that more the delocalization of the electrons or positive charge, more is the stability of the species and lower is its energy. एक unsaturated isolated system की तुलना में conjugated systems के अंदर resonating structures अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि conjugated system में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी कार्बन एटम्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और केवल एक या दो कार्बन एटम्स के बीच में ही लोकलाइज नहीं रहते, जैसा कि आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर होता है। और इस इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण जो है, ये मॉलिक्यूल को अधिक स्थायी बनाता है। अतः किसी अणु में इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज का जितना अधिक डीलोकलाइजेशन होगा या विस्थानीकरण होगा, उस स्पीसीज का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा और इस कारण उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। थैंक यू।